secluded places. आध्यात्मिकता केवल जंगल में, गुफाओं में, कंदरों में भाग जाने का विषय नहीं है. There is a famous saying in Hindi, एक गाना है हिंदी में, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे. How can we achieve the stance of God by running away from the world? Similarly, it has also been said in one of the Vedas called Ayurveda, Yatha Pinde Tatha Brahmande. An individual is a miniature replica of the universe. जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है उसका कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन हमारे व्यक्तित्व में है. Our individual identity carries the same information and knowledge as the whole universe. We just need to tap into that. Today's panel discussion is going to look into in depth about all that. We will share our experience and understanding to draw some logical conclusion that is going to connect with our daily lives. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो विचार गोष्ठी चलती रहेगी, किसी को भी कभी भी हमारे आध्यात्मिकता के विषय में जानने की अगर इच्छा है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और एक ईमेल दिया गया है नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, आप लोग कभी भी उस पर संपर्क कर सकते हैं. तो आज का जो विषय है उसमें सबसे पहला चीज हम पकड़ना चाहते हैं वो है कि आध्यात्मिकता को हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे समझेंगे और वो हमारे जीवन में कैसे जुड़ा हुआ है. हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन बी सीन फ्रॉम ए साइंस पर्सपेक्टिव एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू आवर लाइफ. अगर इसको शॉर्ट में कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग अ ट्रू नॉलेज अबाउट वन सेल्फ. इट इज अ वे टू हार्नेस आवर माइंड्स इन्फिनिट पोटेंशियल्स. ह्यूमन माइंड इज मेड ऑफ वेरियस चैम्बर्स and layers that accomplish different tasks. Mind has much more processing power than a computer in reality, because it's the mind which has created the computer. In normal circumstances, we are able to use only a very few chambers of the mind, and at most we utilize 2 to 5% of our mental capacity. I want to, in short, give some perspective on these layers of the mind, and then other speakers will add on and the discussion will go on further. The first, the outermost layer of our mind is called conscious mind or Chetan mind. It is active when all of our senses are active, when all of our sensory organs such as eyes, ears, nose, etc. are fully functional. This conscious mind gathers and processes the information that is received through the sensory organs. Our usual thought process is based on the information that mind receives through the conscious layer and its interpretation. That is called, in normal language, we call it learning. The second most layer, what we can call the inner layer of our mind, is subconscious or avachetan man. This layer of mind has practically 1,000 times more potentiality than our outer layer of the mind. Its a primary source of perception and information is imagination. And we all know that how powerful an imagination can be. It is provoked by our past experiences and expectations from the future. Most of our imaginations are beyond logic, In normal sense, we call it dreaming, a dreamy state of mind. Through meditation or contemplative spiritual practice, one can penetrate deeper into this layer of the mind without falling into dream. And if someone who can, through practice of meditation, if someone can go deeper into that layer of the mind, many more potentialities are unraveled, which we normally don't experience. And in that layer of the mind, through the power of imagination, we can develop new ideas, we can develop new research, a lot of innovations, new inventions. They all come through that power of imagination. That is the inner layer of the mind. The innermost layer of the mind, what we call the supraconscious or our achetan man, this supraconscious layer of the mind has infinite knowledge, infinite potentiality. So persons who can get deep into this layer of the mind through meditation can tap into this infinite source of knowledge and potentiality.
Some people also call it third eye. The pure consciousness, the pure consciousness in all of us, it is expressed at this particular state of the mind. And the mind, the level of the mind at that time is the level of God. That's a kind of supreme layer. Everyone has this hidden potentiality, from conscious layer to subconscious layer to the supraconscious layer of the mind. We have immense hidden potentiality hidden in all of us. If we can learn through spiritual practice, if we can learn to tap into those potentialities and harness all those resources sitting in our mind, then there is endless possibilities. We can use all of those potentialities for our studies, for our job skills, for research, management, and so on. And not only we become very strong in our personality, but also through that knowledge and experience and potentiality, we can also benefit rest of the world. So this is just the understanding of how the spiritual practice, spiritual knowledge can turn a person into a very potential person. And at this point, I would like to invite everybody else to join the discussion. And I would like to first start with Sri Lalitji. Namaskar, and thank you so much for the invite. Firstly, I must say that I'm very happy and glad to be invited amongst such a highly esteemed sannyasis and whole-time workers of India and all over globe who have been propagating the great ideas of Sri Sri Anand Murthy ji all over the world, the great sublime ideas of spirituality, and they're training thousands and thousands of people, giving them their valuable time, and they're making their lives better. I find this golden opportunity to speak something about the subject which has been fairly discussed at a very nice way, in a very nice way by Acharya Dharma Premanandji. Everything what he has said is completely agreeable. What he said is primarily what spirituality is all about. I would like to say that in modern civilization, in modern times, through science, a certain thought wave has changed. Although what Dadaji just said 2 minutes back, it was prevalent in ancient times. Our ancient civilization discussed everything that was needed by the humanity, whether it was India, whether it was Arab, whether it was Persia, or whether it was Greece. Like in Greece, we had great philosophers like Socrates, Plato, Pythagoras, Euclid. The very famous statement of Socrates was know thyself. So, knowing thyself was primarily one of the main goals of evolved people, thinkers, artists, and writers and philosophers. Greek philosophy is very well known. Same way in India, philosophy developed and reached its very great heights around 2000 years back. And we had so many philosophies, Yoga, Tantra, Upanishad, Vedant. But in the latter half of the period of history, which is the medieval history, certain things changed and everything got little dissolved into oblivion. And in history, it is called as Dark Ages. So masses were little, they were like deprived of this grand philosophy, and they had to live a very different kind of lives. And some 300 years back, when new civilization came, which we call as modern civilization from the Europe, with the beginning and advent of science and scientific thinking, scientific temperament, which tested and checked everything. Science believes in logic, science believes in reasoning, science believes in rationality, and science believes in questioning. This is how scientific temperament was developed. And science, when it came in Europe, it was against the old religion. Old religion had become dogmatic. Old religion had become superstitious. Not only in Europe, it had become superstition in India also, and in other parts of the world also. Everywhere, the word religion was connected with dogma, dying ideas, superstitious ideas, and the exploitative tendencies of priests. It always happens in the cycle of universe whenever a particular era comes where the religious teachers become exploiters.
they become exploitative and they cheat and they are very dishonest, then the religion or dharma falls from its place. It happened earlier also, but science gave it a new dimension and we got a scientific temperament. That is how we have reached till so far today, where we see a huge development of science in terms of its education, in terms of its technology, and the whole world is using scientific means. And today, like now, we are connected through Zoom app, though living in different parts of the world, but still we can interact and we can talk. This is because of the greatness of the science only. So initially, science had a tough time with old religion. But in past 100 years and 150 years, slowly the genuine religious leaders, we may call them spiritualists, they came forward and they discussed and discovered, or they made masses realize that the real aspect of religion, real aspect of philosophy can be applied in real life scientifically. Science is not opposed to spirituality, although the approach of science and spirituality is different. So in past 150 years, we saw great men beginning from Swami Vivekananda and his guru, Shri Ramakrishna Paramhans, then Swami Arvind, then Meher Baba, Swami Yoganand, J. Krishnamurti in India, Annie Besant, Madame Blavatsky in West, schools of theosophy. And then we had a great dynamic guru, Shri Anand Murti ji, who formulated a new philosophy in the name of Anand Marg and combined everything which was best of religion, best of psychology, best of science, and presented a new philosophy in a very psychological and scientific way. I mean, Shri Anand Murti ji's contribution to the world in the form of philosophy is something which is unparalleled. He has, the Guru has said the same things like what Dharma Premananji spoke about spirituality. In ancient Indian philosophy, we understand the human desires in four forms. They are well known as Kama, Arth, Dharma, and Moksha. Now, in modern language, Shri Anand Murti ji describes it as the physico-psychic desire, the psychophysical desire, the psychic desire, psycho-spiritual desire, and spiritual establishment. The ancient religion spoke of Kama, Artha, Dharma, and Moksha. These are the four fundamental desires, fundamental longings in human being. So every human being has a desire for psycho-spiritual world, which is basically Dharma, which is basically the desire to meet the Supreme, the desire to touch the threshold of Supreme, because individual cannot be happy with only physical and psychic desire. The desire of instinct and desire of earning money, earning livelihood, forming a family, raising children, buying more houses, buying big cars, having more and more of money and material affluence. A human being cannot be satisfied with that. And this is visible everywhere. There is an inner anguish, which can be called as a spiritual anguish. People do not understand normally this anguish. There is a pain within every successful human being. What is that pain? Sometimes that pain is a misleading pain of gaining more money. But gaining more money doesn't give you more happiness. It doesn't give you the inner satisfaction. So you are, or one is still inwardly unhappy. It is because of the real desire of spiritual salvation. Because spiritual philosophy tells us that we have come from the supreme consciousness. The whole existence is an expression of supreme consciousness, and human beings are its best and evolved species. And human beings have this desire. So if we have a desire, so there must be some effort to do something. So that effort is known as dharma. That effort is known as a spiritual movement. People who are not connected with spirituality, or who are connected only with the psychological understanding, they may not identify or understand what the spiritual movement is. Because spiritual movement takes mind from the zone of psychology to the zone of consciousness, to the zone of Atma, to the zone of Chaitanya Satta, which is the real
real stuff of which a human being is made, of which the entire universe is made, of which each and every existence is made. So it's like going towards your inward self. So that movement is called as dharma. Dogmatic religion spread certain ideas of dharma in the form of loving a particular organization or loving a particular sect, and it misled the entire humanity, and which led to so many miseries, so many reasons for war, so many reasons of clashes within a particular country, and we ended up in devastating so many lives. But spirituality or the real dharma has nothing to do with it. So real dharma begins with the thirst for spirituality, which is the zone of consciousness, and how it is to be attained. Normally, a human being, when he or she becomes little aware of oneself, maybe by the age of 13, 14, or 15, 16, one is drawn towards the external world, and one feels to do something in the external world. And there are so many influences: the family, school, education, teacher, everything. And the first effect is of this external influence, which gives you a desire to become successful in the worldly manner. I mean, the desire to have money, desire to have a job, everything. This is the beginning, and this is the first influence. But this influence doesn't make a man completely happy. This influence is this influence breaks after a point. If one lives normally, one realizes that there is something more than what one is chasing. There is something more which is more valuable. There should be something more valuable. And when one asks for these valuable things, this permanent things, then one moves towards this movement which we call a psycho-spiritual movement. And then one chases certain books, listens to certain teachers, finds solace in the presence of spiritual masters. There are so many books, there are so many philosophies, there are so many gurus, and then one starts adopting certain measures, certain practices. It begins with practice of asana and pranayama. It begins with the process of basic vipassana school, or then little more evolved meditation, then ultimately the meditation system of tantra. In West, nearly 50, 70 years back, a wonderful teacher in the name of Gurdjieff, he he started something which he called as self-remembering. This self-remembering is also a very interesting part of spiritual sadhana. And in America also, and in Europe also, many people and many disciples were attracted towards him. And his system and his method was something very scientific, something which appealed to all kinds of literary people, intelligent people, scientific temperament people, and they started learning it. And ultimately, they came close to what Indian philosophy teaches. India has been a land of philosophy, and here philosophy has nourished human people. And every second person in India is connected with something or the other form of philosophy. And that is why the attraction towards divinity, attraction towards spirituality is a very common thing in India. But what we see now in Western countries, particularly European countries, and now in America also, that the desire to get connected with the spiritual world is now a very normal thing. But right now, people are intellectually getting connected with it, which is a good sign. But in coming years, I'm sure more and more people will come on the path of meditation, because spirituality is a practical science. You may read a lot about the concepts which we are discussing here, but by reading, one may not get the real taste of it. To get the real taste of it, one has to practice. One has to practice through a teacher. So the aim becomes to first find a teacher. First find a teacher who can teach you and who can take interest in you, struggle with you, and make you aware of certain issues, certain concepts, and help you in the development of your spiritual world. So, as I know that every speaker has to speak within a particular time, I would like to sum up my
my talk by saying that yes, the world is moving towards awareness of spirituality. In some areas, there is a pseudo spirituality. In some areas, there is a genuine spirituality. And the real spirituality can happen only if one moves practically on the path. This practice of, which is ultimately meditation, and in the path of meditation, the methods and methodologies of Tantra are of highest value. And again, so far as Tantra is concerned, Guru Shri Anand Murti Ji has evolved a system of tantric meditation in a very scientific way, in a very methodological way, and every modern man, modern woman who is well versed with the scientific temperament, who is well connected psychologically and with all forms of modern education, can easily pick up those ideas, start practicing, and move forward and make their lives better, and do whatever best is for themselves, and at the same time help the society in its overall growth, help their own community, their family, the organizations, and people at large. So with these words, I would like to take a break here, and I would ask Acharya Dhan Premanand to invite our next speaker. Sure, Dada. First of all, thank you. I think you wrapped up quite good ideas on spirituality. जिस सवाल पे हम लोग बात कर रहे थे वो सवाल था कि आध्यात्मिकता को वैज्ञानिक तरीके से कैसे देखा जाए और हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, इस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे. हमारा जो अगला सवाल है वो है कि आध्यात्मिकता हमारे पढ़ाई में, हमारे जॉब में, करियर में, एम्प्लॉयमेंट में कैसे उसका मदद होगा, ये हमारा अगला सवाल है. लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि शॉर्ट में जो हमारे बाकी स्पीकर्स हैं वो भी अपना इस पे अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, इनसाइट्स थोड़ा शेयर करें और फिर उसके बाद हम लोग अगले सवाल के ऊपर बढ़ेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आचार्य नित्य सुंदरानंद दादा जी से कि वो फिर अपना. नमस्कार. समाज में आध्यात्मिकता या अध्यात्म शब्द को सुन करके बहुत सारे भ्रांतियां हैं. लोग स्पिरिचुअलिटी को कुछ बड़े ही दरकिनार दृष्टि से देखते हैं. वो सोचते हैं कि ये बुढ़ों का काम है, सन्यासियों का काम है, या जो मतलब बैरागी है उसके लिए. लेकिन इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है. मैं 3-4 शब्द को मैं कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म, स्यूडो स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन में क्या अंतर है. एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है साइंटिफिक मेथड बाय थ्रू दैट वन हु कैन रियलाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. खुद को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है, एंड इट इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट हैज लॉजिक, इट हैज रीजनिंग. उसके बाद स्पिरिचुअलिज्म है जो कि घोस्ट से रिलेटेड है, जो प्रेत वगैरह मतलब डॉगमेटिक चीजों से इस तरह का रिलेटेड है. थर्ड है जो रिलीजन जो है वो बेस्ड ऑन बिलीव या फेथ कह सकते हैं. तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि बेस्ड ऑन रियलाइजेशन एंड रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ. तो फेथ और रियलाइजेशन में सबसे बड़ा अंतर है कि इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि कोई कहे कि मिस्टर एक्स इज वेरी गुड पर्सन, तो मैंने उनके बातों पर बिलीव कर लिया और मैं सोचने लगा कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छा है. बट किसी और ने कहा कि मिस्टर एक्स इज वेरी बैड पर्सन, तो अभी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा कि मिस्टर एक्स इज रियली गुड पर्सन, बहुत अच्छा व्यक्ति है या बहुत बुरा व्यक्ति है. क्योंकि ये विश्वास का परिणाम हुआ कि मैंने किसी के कहे हुए बातों पर, सुने हुए बातों को मैंने विश्वास कर लिया. लेकिन जब किसी को रियलाइजेशन होता है, अनुभूति होता है कि आई नो मिस्टर एक्स हाउ ही इज,
इवन सारी दुनिया में भी बोलेगा कि मिस्टर एक्स खराब है या अच्छा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्वयं ये अनुभूति किया हूं, मैं उसको खुद जानता हूं। उसी तरह जब आध्यात्मिकता के तरफ अग्रसर होता है इंसान, तो परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में उनको अनुभूति होती है और वो जानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि आखिर आध्यात्मिकता है क्या, इसलिए वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के 3रा श्लोक में कहते हैं कि परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अर्थात जो ईश्वर की सूक्ष्म आत्मानुभूति है वही अध्यात्म है। इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि अध्यात्म का मतलब कहीं टीका लगाने से, माला पहन लेने से या गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से, ये सब कुछ नहीं, ये सब दिखावा है, आडंबर है। इसको स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से कोई लेना नहीं। अध्यात्म का सीधा मतलब होता है कि अपने आत्मा को समझना, अपने आत्म स्पिरिट को समझना, और उसको श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद सूत्र में कहते हैं कि ब्रह्देशना परिनिधानम च धर्म, यही आत्मा का स्वभाव है कि बृहद की प्राप्ति अर्थात आदि अनंत असीम सत्ता की प्राप्ति ही अध्यात्म है। नमस्कार। नमस्कार दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में थोड़ा ऑडियो देख लेता हूँ। हाँ, तो मैं आगे इस विषय पे चर्चा के लिए इनवाइट करता हूँ डॉक्टर विनीता आनंद दीदी को। वो अपना मंतव्य रखें और धीरे धीरे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ भी। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और विज्ञान तर्कपूर्ण होता है, तर्क पर आधारित होता है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अधि प्लस आत्मा। आत्मा अधि मीन्स बड़ा, व्यापक, विस्तार। तो आत्मा के विस्तार को अध्यात्म कहते हैं। जब मन इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर के अपनी आत्मा के निकट पहुंचता है, तब आत्मा का विस्तार होता है, जिसे अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म कल्पना नहीं है। ये शरीर कल्पना नहीं है, ये दिखाई पड़ता है। और इस शरीर को संचालित करने वाला, दिशा निर्देशित करने वाला जो मन है, वो भी कल्पना नहीं है। वो दिखाई नहीं देता, पर वो कल्पना नहीं है। फिर मन और शरीर के क्रियाकलापों पर जो दृष्टि रखता है, जो दृष्टा है, वो है हमारी आत्मा, जो कल्पना नहीं है। मन जब इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर के, इंद्रियों के अधीन ना होकर के, इंद्रियों पर नियंत्रण करके साधना के द्वारा अपने आत्मा के निकट पहुंचता है, तब वह आत्मा के द्वारा निर्देशित होता है। उससे त्रुटियां कम होती हैं, उससे भूल कम होते हैं, वह आत्म विवेचना करता है। इसी को बोलते हैं आत्म विवेचना करना, आत्मावलोकन करना, अंतरात्मा की आवाज। तो डेफिनेटली अध्यात्म जो है वो कपोल कल्पना नहीं है, ये उच्च कोटि का विज्ञान है। मनुष्य के त्रिस्तरीय प्राणी है। मनुष्य भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर उसकी आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी समान पूर्ति अति आवश्यक है। भौतिक स्तर पे उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं कि रोटी, वस्त्र, कपड़ा, निवास, चिकित्सा। मानसिक स्तर पर उसकी आवश्यकताएं होती हैं पढ़ाई, लिखाई, इन्वेंशन और ललित कलाओं में म्यूजिक, डांस। ये सारी उसकी योग्यता होती है, उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसकी मानसिक पिपासा होती है। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर उसकी पिपासा होती है परम आनंद की प्राप्ति। ये ब्रह्मांड, ये विश्व ब्रह्मांड उस बृहत का ही स्थूल विकास है। तो उस बृहत तक पहुंचना, उस बृहत में प्रतिष्ठित होना, उस परम पद को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही उसकी आध्यात्मिक पिपासा है। तो इसलिए और ये चीज बिना आध्यात्मिक हुए पूर्ण नहीं हो सकता है, पाया नहीं जा सकता है। अगर कहें कि ये जो आध्यात्मिक पिपासा है, ये जो बृहत में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा है, यही मनुष्य जीवन का केंद्र बिंदु है, तो गलत नहीं होगा।
इसलिए ये जो अध्यात्म है, ये हमारे जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और हम भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हो और आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति ना हो तो भी मन का विकास प्रॉपर नहीं हो सकता है, क्योंकि मन अनंत सुख चाहता है, सुखम अनंतम आनंदम। वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, आनंद में प्रतिष्ठित होना चाहता है। और जब मन अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके साधना के माध्यम से अपनी आत्मा के निकट पहुंचता है तो वो आनंद में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए अध्यात्म साइंस है, विज्ञान है और उच्च कोटि की जीवन शैली है। धन्यवाद। तो ठीक है, आगे अगला सवाल है, लेकिन मैं कहूंगा कि समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने विचारों को मतलब कंसाइज करेंगे ताकि अधिक से अधिक चीजें लोगों को हम बता सकें। आचार्य पूर्ण देवानंद दादाजी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना मंतव्य रखें, उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। नमस्कार। हमारे तीनों पूर्व वक्ता बहुत ही सुंदर ढंग से आध्यात्मिकता और रिलीजियन के बारे में अपना विचार व्यक्त किए हैं। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। जैसे कि अभी विनीता दीदी ने कही, आध्यात्मिक सर्वोच्च विज्ञान है। फैक्ट यही है कि जिसे हम विज्ञान कहते हैं, उस विज्ञान का जो ओरिजिन है, जो उत्स है, जो सोर्स है, वो अध्यात्म ही है। क्योंकि विज्ञान का अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ ही होता है नोन टू अननोन। कह सकते हैं कि साइंस इज ए मेथोडोलॉजी टू मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना ही विज्ञान है। और जब ज्ञात और अज्ञात की बातें आती है तो हमारे सामने जो हम देखते हैं, जो विजिबल वर्ल्ड है, जिसको हम परसीव कर सकते हैं, क्विंकल मेंटल वर्ल्ड है। ये क्विंकल मेंटल वर्ल्ड है, ये विजिबल है, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए ज्ञात है। और अज्ञात क्या है? जिस चीज को हम नहीं जानते हैं। जैसे वर्तमान साइंस अब तक माइंड और ब्रेन, ये शायद पूर्ण देवानंद दादा का ऑडियो चला गया। हेलो, उनकी लगता है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो। अभी तक जो मॉडर्न साइंस है, ये मॉडर्न साइंस अभी तक प्रॉपरली ये डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि ब्रेन एंड माइंड दोनों चीज में डिफरेंसेस क्या है, रिलेशन क्या है। किंतु यहाँ पर महान दार्शनिक और धर्मगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ब्रेन को एंड माइंड को कंप्लीटली डिफाइन किए हैं साइंटिफिकली। क्या है ब्रेन? ये स्थूल बॉडी का, फिजिकल बॉडी का कंट्रोल है, जो कि कुछ स्नायु तंतु, स्नायु कोशिकाएं, न्यूरॉन्स से बने हुए हैं, क्रेनियम से बने हुए हैं। किंतु माइंड बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। उस माइंड को के बारे में अभी तक क्लियर कॉन्सेप्ट कोई भी साइंटिस्ट ने नहीं दे पाया। तो यहाँ पर माइंड के बारे में सरल भाषा में अगर हम जाने तो माइंड क्या है? माइंड का 3 पॉइंट को 3 स्तर में बांट सकते हैं। एक है स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल मन में क्या आता है? जैसे हमारी क्षुधा है, हमारी तृष्णा है, निद्रा है, तंद्रा है, जो बेसर जो प्रोपेंसिटीज है, बेसर जो इंस्टिंक्ट है, जिस जहां है, उसको हम मन कहते हैं। बट
इस स्थूल मन से थोड़ा सा अगर ऊपर उठते हैं तो देखते हैं कि वहां पर मनुष्य ये सिर्फ क्षुधा तृष्णा में सीमित नहीं रहता है, वहां पर मनुष्य में भावनाएं, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा दादा, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना दादा? तो रुकिए और जस्ट 1 मिनट। और दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म, तीसरा हुआ कारण। कारण का मतलब ही होता है कि हम जिसको सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये तो सिर्फ माइंड का परिधि है, ये मन का परिधि है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, ये माइंड का परिधि है। किंतु जो आध्यात्म है माइंड के दायरे में नहीं आता है, माइंड के बियॉन्ड। वो क्या है? ये माइंड है, माइंड एग्जिस्ट कर रहा है, माइंड का एग्जिस्टेंस है। इसको कौन प्रमाणित करेगा? कौन देख रहा है? कौन साक्षी कर रहा है? विटनेसिंग एंटिटी कौन है? दृष्टा कौन है? कौन है विटनेस कर रहा है कि माइंड एग्जिस्ट कर रहा है? ये जो दृष्टा जो पार्ट है, विटनेसिंग पार्ट है, इसी को कहते हैं आत्मा। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म जो है फिजिको साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म है। आध्यात्मिकता फिजिको साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म है, अर्थात फिजिक्स से ट्रांसफॉर्म करके साइकिक वर्ल्ड, और साइकिक वर्ल्ड को हम ट्रांसफॉर्म करके वो टर्मिनेट करना है, मर्ज करना है, सब्लिमेट करना है। किसमें? हमें सोल में, जिसको बोलते हैं विशुद्ध कॉन्शियसनेस है। अर्थात कहा जा सकता है कि आध्यात्मिकता से ही सारे साइकोलॉजी हुआ, फिजिकल साइंस हुआ, सबका जन्म और उत्स सोर्स है वो स्पिरिचुअलिटी है। कह सकते हैं उस अध्यात्म को जानना ही प्रकृत विज्ञान है। So spirituality is a pure science, and it is the main tree from which all the branches of science has emerged. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आज के इस पैनल डिस्कशन में जो अगला सवाल है हमारे लिए वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी की बातें तो हुई है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी हमारे जो लोग हैं, जो खास करके युवा वर्ग हैं, लोग नौकरियां करते हैं, जो रोज धक्के खाते हैं, यहाँ जाना वहां जाना, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने चैलेंजेस है, तो वो अपना या स्पिरिचुअलिटी उनके लिए किस प्रकार से कारगर साबित हो सकता है? ऐसा क्या चीज है आध्यात्मिकता में जो उनके चीजों को और ज्यादा बेहतर बना सकता है? क्योंकि आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जो हर लोगों के लिए बड़ी ही काम लायक चीजें हैं। इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा दादा नित्य सुंदरान जी इलैबोरेट करें, और हम लोग फिर अपना संक्षेप में इसका मंतव्य रखेंगे ताकि बाकी के सवाल पे भी हम एक एक करके चले जाएं। तो दादा नित्य सुंदरान जी। धन्यवाद। प्रश्न है, आध्यात्मिकता आजीविका और पढ़ाई में संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकती है? आज समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, प्राय लोग जो जीवन के मूलभूत आवश्यकता है उसी में उलझे हुए हैं, उसी में परेशान हैं, और उसको कमाने के लिए, पाने के लिए इतने तनावग्रस्त है कि वो आध्यात्मिकता की तरफ सोच ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे समाज की ऐसी दुर्दशा है, कुव्यवस्था है कि एक अच्छे स्टूडेंट होते हुए भी पढ़ने के लिए उसके पास साधन नहीं है। उनके पास जीने के लिए जो 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब का मूलभूत की कमी है, जिसके कारण से व्यक्ति आए दिन परेशान रहते हैं। जब वो किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि उनके पास अच्छी डिग्री नहीं हो,
अच्छी डिग्री भी हो तो पर भी इंटरव्यू में वो पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि करप्शन है, वहां पर उसको अप्रोच चाहिए, घूस चाहिए। तो इन तमाम तरह के परेशानियों से आज जो है गुजर रहे हैं हमारे यूथ पीढ़ी जो गुजर रहे हैं, तो उनके मन में इतनी निराशा, हताशा और तमाम प्रकार के मानसिक और संतुलन का ये एक परिलक्षण दिखाई पड़ता है। और जिसके कारण से आज समाज में इवन पढ़े लिखे लोग, इवन जो मूलभूत अवस्थाओं से पूर्ण परिपूर्ण है, वो भी देखा जाता है कि आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कारण क्या है? कोई जरूरी नहीं कि गरीबी के कारण कोई तनावग्रस्त है, हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है कि हमारी जो मेंटल वीकनेस है वो बहुत ही कमजोर है। हमें सेल्फ स्टीम, हमें आत्मबल की कमी है, आत्म ज्ञान की कमी है। केवल देखिए, पुस्तकी ज्ञान से ही सब कुछ नहीं होता है, उसमें स्किल होना चाहिए, उसमें तमाम प्रकार की क्षमताओं का मतलब पूर्ण विकास होना चाहिए, तब वो अपने आप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और इसका जो इंसान के अंदर में छुपी हुई जो जितनी भी प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, उसमें कुशलताएं हैं, उसको केवल आध्यात्मिक प्रैक्टिस से ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से हमारे जो अंदर में जो डोरमेंट स्टेज में बहुत सारी क्वालिटी है, प्रतिभाएं हैं, वो छुपी हुए हैं, उसको कैसे हम उभार सकते हैं, फ्लोरिश कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं, इसका ज्ञान आध्यात्मिकता से मिलती है। इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि जीवन में आज समाज में जो बहुत बौद्धिक रूप से विकसित हुए हैं, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, ये सब अपने जो मेंटल पोटेंशियलिटी का 2 to 5% मैक्सिमम उन्होंने यूज किया। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिकता की साधना करते हुए, इसका अनुसरण करते हुए अगर आगे बढ़े, तो हमारा मेंटल पोटेंशियलिटी कई गुना अधिक विकसित हो सकते हैं, प्रबल हो सकते हैं, और हमें प्रतिभाओं में और क्षमताओं में, बहुत काबिलियत में, कार्यकुशलता में बड़ी मतलब सहायता होगी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी कोई जीवन की कोई मतलब ये चीज नहीं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बचपन से पढ़ाया गया है कि जब बच्चे हैं तो पढ़ो, उसके बाद जवानी में परिवार को देखो, उसके बाद जो मतलब फोर्थ अवस्था जो वृद्धा अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था, उसमें आध्यात्मिकता की बात कही गई, जो कि रॉन्ग टीचिंग है। बाबा कहते हैं कि हमें प्रेरणा ध्रुव से लेना चाहिए, प्रहलाद से लेना चाहिए, जो कि 5 साल की उम्र से उन्होंने आध्यात्मिक साधना की और उसने अपने प्रतिभाओं को इतना उजागर किया कि वो निर्भय निडर होकर के हर चीज में आगे बढ़ता गया। शास्त्र में कहा गया है मन करोति कर्माणि, अर्थात जो भी काम करते हैं हम मन से करते हैं, शरीर तो एक माध्यम है। इसलिए अगर जिस व्यक्ति का मन कमजोर होता है, उसमें प्रतिभाओं को रहते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो हताश और निराश होते हैं। इसलिए जीवन में अपना जरूरी है कि आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े। दूसरा सवाल होता है कि जो भौतिकता के अभाव में लोग मॉरलिस्ट नहीं हो पाते हैं और मॉरलिटी के अभाव में लोग स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हो पाते, इसलिए इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी दिया है, जिसको कि प्रगतिशील उपयोगी तत्व अर्थात प्रौध कहते हैं। उनमें तमाम प्रकार की चर्चा किए हैं और समाधान दिए हैं, उसमें हर प्रकार की समस्याओं का समाधान है, उसको पढ़ना चाहिए। तो इंसान को अपना मनोदिशा और मनोदशा, ये 2 चीज पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और ये मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के बारे में कहा गया है क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माइंड। जब हम अपनी आंख बंद करके जब अपने अंदर में झांकते हैं, तो हमें यह आभास होता है कि मैं कौन हूं,
और पता चलता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं और परमात्मा कोई छोटी सत्ता है नहीं। जब अपने में आभास होता है कि मैं स्वयं परमात्मा का अंश हूं, तो उसके मन में एक आत्मबल जागृत होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है, उसमें विवेक जागृत होता है और उसमें इतनी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, वो किसी भी चीज को करने में सक्षम है और मेंटल पोटेंशियलिटी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता एक नशा है, इट इज लाइक ओपियम, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इट्स ए रॉन्ग धारणा है, ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। आध्यात्मिकता बल्कि हमारे एबिलिटी को और उजागर करता है, हमारे पोटेंशियलिटी को और प्रोड्यूस करके हमको सक्षम बनाता है। इसीलिए नियमित रूप से जो मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, उसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के उन्नति और प्रगति होते हैं। जिस प्रकार के हमारे पूर्व वक्ता बोलते हैं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी आर ट्रांसवेरियस, तो किसी भी क्षेत्र में हम कम रह जाएंगे तो हम पूर्ण विकसित या हमारा पर्सनैलिटी जो है पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि आज के डेट में मोबाइल बहुत ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हर लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये खूबियों से भरा हुआ है, क्योंकि हम इसमें तमाम तरह के अच्छी चीज इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं, या यूट्यूब पर चला सकते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज देख सकते हैं, किसी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस मोबाइल को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको मोबाइल यूज करने के पहले हमें दो प्रकार से उसको रिचार्ज करना पड़ता है। एक तो उसको इलेक्ट्रिकल रिचार्ज और दूसरा है कि डेटा रिचार्ज। मतलब जब बैटरी रिचार्ज हो जाएगा तो हमें डेटा लेना पड़ेगा। उसी प्रकार जब कोई इंसान साधना करते हैं तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो इतना एनर्जाइज हो जाते हैं, उसमें इतनी क्षमता आ जाती है, उसमें बल आ जाते हैं, वो हर प्रकार के चीजों को करने में सक्षम हो जाते हैं और निराशाओं से ऊपर उठ करके, हीन मान्यताओं से ऊपर उठ करके वो हर प्रकार के चीजों को करने में सक्षम होते हैं। और ये जो हमारे पढ़ाई है या जीविका या पेशा है, इसमें हम पूर्ण रूपेण उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता डायरेक्टली हो सकता है कि हमें सहायक नहीं हो, लेकिन ये फंडामेंटली ऐसा बेसिक चीज है कि इसको आधार मान करके कोई अनुसरण करे, उसको पालन करे और इस पर चल करके कोई आगे बढ़ना चाहे तो जीवन में निश्चित रूप से वो सफल हो सकता है। नमस्कार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री ललित परमू जी बोलेंगे, उसके बाद एक संक्षेप में मैं बोलूंगा, फिर रिक्वेस्ट करूंगा दादा पूर्ण देवानंद जी से और जो डॉक्टर विनीता आनंद दीदी हैं उनसे मैं कहूंगा। तो सबसे पहले श्री ललित परमू जी। Yes, we need to make youngsters realize that how spiritual education can give them a new dimension towards life. See, youth is the result of childhood training and the training what they receive in their teenage days. So the entire training of their early days depends on first school education and their education in their homes, their parents. So it's highly important in order to develop spiritual taste in the minds of youngsters that we must educate them from their school days. It's a must thing for youngsters. Only then they can be attracted by the charm of spirituality. Otherwise, once they are away from this world, they cannot be brought back to the world of spirituality and they will be derailed or they go in the other ways, the ways of completely extroversion life, and they even end up becoming, they get attracted by drugs and other areas also, which is mostly seen in the Western world and now it is catching up high in India too. So the early education is of high importance, the early school education. As spirituality demands morality also, morality is considered as the base of spiritual practice. Without morality, one cannot be a spiritualist.
At the same time, you cannot say that one who is not uh, an honest person can be a spiritualist. It is impossible. A dishonest person and a spiritualist, this is an impossibility. A thief and a spiritualist, this is an impossibility. A violent person, a person who is completely a violent person and a spiritualist, it is an impossibility. So first one has to develop the moral values, and these moral values are to be developed during the childhood days, during the early education, the primary education and secondary education, and then make it a habit for youngsters that you must start practicing along with your study, along with your job, along with your married life, along with your raising children and whatever they are doing. Only then we can see the results of their practice. One may not become a great spiritual practitioner, but one will develop a mental force, one will develop inner satisfaction, one will develop what is called as santosh, one will not be always chasing money and wealth, one will be happy with a small house. All these things are qualities which morality and spirituality develops. Like I can quote one of the famous sayings of Saint Kabir, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए. Now this is a saying of an ancient weaver, a spiritualist person. So you must earn money, but this money should be sufficient enough to make your both ends meet, and at the same time you should be capable to feed a guest, a sannyasi, or a visitor. This should be the aim. This can be developed only if you are practicing spirituality from your young days. Now, the whole world, actually, the youth depends or imitates the topmost people of the society. And unfortunately, our topmost people of the society are less spiritualists. Rather, very few are on top. They are highly materialist people. They are highly, chasing money and chasing wealth. People like Warren Buffett and people like Bill Gates and people. There are hundreds of them in West and hundreds of them in America and Europe. This is something which a youth is. This is one reason that youngsters are not pulled towards spirituality. So I believe that the top people in every branch of society has to be a spiritualist. If a day comes like this, then I'm sure youth will not have any difficulty in imitating such great personalities. This is my opinion regarding this. Thank you. Dada, thank you very much. I'm going to very briefly touch a little bit on this subject and then we'll go on further. सबसे पहले मैं अपना ही उदाहरण देना चाहता हूं. जैसे दादाजी ने, नित्य सुंदरानंद दादा ने शुरू में बताया, मैं 13.5 साल की उम्र में सन्यासी बना. अब 13.5 साल की उम्र में कौन कितना पढ़ सकता है ये आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं. तो मैं बहुत ही थोड़ी सी पढ़ाई करके और एकेडमिक जो भी कह सकते हैं पढ़ के मैं सन्यासी बना. तो हमें जीवन में ऐसे क्लैशेस आए, एक ऐसा समय आया कि जो मुझे लगा कि एकेडमिक चीजें क्या है, कैसे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं जीवन में. जैसे कि एक लोगों ने एक हमारा लेक्चर रखा था रोटरी क्लब में त्रिवेंद्रम साउथ इंडिया में, और मेरे नाम से एक मैगजीन में छप गया कि आचार्य, जो भी हमारा नाम था उस वक्त, कि आचार्य ये जो आने वाले इनका स्पीच है. जब मैं उस स्पीच देने के लिए उस दिन पहुंचा तो मार्गी थे, डिवोटी थे, उनके स्कूटर से मैं उतरा तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी किधर हैं. तो मैंने बोला स्वामी जी तो मैं ही हूं. लोगों को, क्योंकि उन स्वामी जी का पिक्चर उनके दिमाग में है ना, कि बड़े कंठी माला, बड़ी दाढ़ी, बड़ा ये, देखने में कोई लंबे चौड़े गंभीर, ऐसी धारणा है लोगों के मन में. तो मुझे क्या कॉम्प्लेक्स आया होगा सोचें आप लोग. तो मुझे लगता है कि जो जीवन में जितने भी यूथ हैं, यंग लोग हैं, they all must be going through same kind of challenges and struggle in the life. So spirituality, how it is going to connect and how it is going to be resourceful, मेरे अपने जीवन में जो घटी है वो चीजों को मैंने देखा है कि अगर आदमी स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन करता है तो माइंड के अंदर, चाहे आप जितना भी पढ़े हो लिखे हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपके माइंड में इतनी पोटेंशियलिटी है कि जो उसका आपको पता ही नहीं है. आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन के ऐसे ऐसे चैम्बर खुलते हैं
आपके दिमाग से ऐसी ऐसी विचार आने शुरू होते हैं, आपके दिमाग में ऐसी क्षमताएं आ जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको हम एक छोटा सा उदाहरण दे दें कि लोग जॉब अप्लाई करने के लिए जाता है तो उसके रिज्यूमे पे जो सबमिट करते हैं और जो एम्प्लॉयर है उससे दो चीजें खास करके मांगता है। क्या मांगता है कि कैंडिडेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, समस्याओं को समाधान करने का। आदमी जब मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन करने से उसके अंदर ये क्षमताएं आ जाती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। उसके अंदर ये चीजों को सोचने का तरीका और चीजों को निष्कर्ष पे पहुंचने का तरीका बहुत अच्छे से आ जाता है। और नेचुरली आदमी जब ऐसी क्षमताओं को लेकर के कहीं जॉब के लिए भी जाता है ना, तो एम्प्लॉयर को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति भले ही पढ़ा लिखा दूसरे ढंग से है, लेकिन इसके अंदर ये एबिलिटीज हैं। दूसरी चीजें, जब आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पूछते हैं डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर चीजों को इंस्टेंटली डिसाइड करने की क्षमता होनी चाहिए। एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं उनको डिसीजन लेने के लिए आधा सेकंड का समय दिया जाता है। तो आपके अंदर वो जो एबिलिटी है वो कहाँ से आया? कहीं आसमान से तो कूद करके नहीं आया है ना। ऑल दीज सटलर पोटेंशियलिटीज एंड डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द माइंड गेट्स ओपनड व्हेन यू डू मेडिटेशन। And once these chambers and potentialities of the minds are opened, basically whole world is open to you. You can utilize all that potentialities in every aspect of your life. And with that, I would like to carry this discussion forward. But I want to say that, yes, this is exactly what a spiritual meditation, a contemplative thinking, a scientific meditation does to your life. And next I am going to invite is Dada Pundevanand ji, and after that will be दीदी विनीता जी। दादा पुण्यदेवान जी। एकदम ठीक है, आप एकदम सही बात बताए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट को, यूथ को, सिर्फ यूथ को नहीं, आज के समाज के डिफरेंट वर्ग के लोगों में, क्योंकि उनको रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी दोनों को वो माने अलग रूप से वो समझ नहीं पाते हैं। वो रिलीजियन को भी स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिलीजियन समझते हैं। और स्पिरिचुअलिटी को लोग समझते हैं कि मंदिरों, गिरजाओं और मस्जिदों में कन्फाइंड रहता है। आदमी को स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाओं से निकल के आना पड़ेगा और उसको मन मंदिर में एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि आचार्य धर्म प्रेमानंद जी ने कहे हैं अभी जस्ट कि spirituality is to explore the different chambers of mind. Not only exploring the chambers of mind, by exploring or transforming different channels, and that has to be merged or unified with the pure consciousness, that is called the soul or the spirit, or you can say I exist. Okay, I-ness, the pure self-realization. Self-realization. Real I means I exist, I do. So to know or to realize the I, that is the pure science of spirituality. It has got nothing to do with any ritual, any dogmatic faith, any temple, and any kind of extroversial ritual. Spirituality is a way of introversialization. अपने आप को अंतर्मुखी करना, अपने आप को मन के गहन उसमें डाइव करना, यही स्पिरिचुअलिटी है। और विशुद्ध जो चेतना है, चेतना को जानना, यही आध्यात्मिकता है। इस डिफरेंस को अगर आदमी समझ जाता है, समझने के बाद ही वो समझ पाएगा कि नहीं, जिस चीज को हम मंदिर मस्जिदों में खोज रहे हैं वो चीज हमारे अंदर में ही है। हमारे अंदर मैं खुद हूं, इसी को मैं खुद हूं, मेरे मैपन को समझ जाना, यही आध्यात्मिकता है। जिस दिन इंसान मैपन को जान जाएगा, अपने मन के अंदर में बोया गया, पिरोया गया जितने भी रिएक्टिव मोमेंट्स है, संस्कार है, बाहरी दुनिया से सिखाए हुए जितने भी आवर्जना है, जितने भी कचरा है, इस चीज को खत्म करके विशुद्ध आई को एक्सप्लोर करना, यही तो आध्यात्मिकता है। अर्थात खुद को पहचान जाना,
इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन इज द रियल नॉलेज। जिस दिन इंसान सेल्फ रियलाइजेशन का पाठ को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर बाहरी दुनिया की जितने भी समस्याएं हैं स्वतः अपने आप स्पॉन्टेनियसली वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि एक है दार्शनिक दृष्टि से आध्यात्मिकता को समझना, दूसरा है प्रैक्टिकल दृष्टि से। प्रैक्टिकल क्या है? जैसे कुछ ही देर पहले ललित जी ने बताए कि विदाउट मॉरलिटी स्पिरिचुअल लाइफ कैन नॉट बी सक्सेसफुल। और स्पिरिचुअलिटी कोई भाषण देने की चीज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी रियलाइजेशन का चीज है। और इस रियलाइजेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेज है। उस प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल पार्ट को अगर लाइफ में हम अपनाते हैं तो स्वाभाविक रूप में ये सारे मन के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। वो क्या है? मोरालिटी का पहला ही चीज बताया जाता है कि दूसरों को कष्ट मत दो। दूसरों को कष्ट नहीं देने की जो मानसिकता जब तैयार होती है तो स्वाभाविक रूप में हम किसको कष्ट देते हैं? जिस व्यक्ति के प्रति हमको नफरत है, जिससे हमको जलस होता है, ईर्ष्या होती है, जिससे हमारा वैमनस्यता है, उसको हम कष्ट देते हैं। लेकिन जिस समय उस व्यक्ति और उस वस्तु के प्रति मेरा अपनापन बोध महसूस होगा, अपनापन महसूस होगा, तो इंसान क्या करेगा? स्वाभाविक रूप में जो मेरे अपने हैं, अपने को कोई भी कष्ट नहीं देता है। अर्थात अपनापन का ये जो फीलिंग जगने के बाद ही मनुष्य में वो इस मानसिकता बन जाती है, मन की जो प्रस्तुति होती है वो कि मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। क्यों कष्ट नहीं दूंगा? क्योंकि मेरा लाइफ जितना मेरे लिए प्रिय है, दूसरों का जीवन भी तो उतना ही प्रिय है। ये फीलिंग जब जगती है तो मन की जो कालिमा है, मन की जो संकीर्णताएं है, जिस संकीर्णताओं से घिरा हुआ हमारा मन है, ये संकीर्णताओं का जंजीर टूट जाते हैं। असंकीर्णताओं का जंजीर टूटते हैं तो मन विस्तार लाभ करता है, एक्सपांड करता है। और जो ही एक्सपांड करता है तो मन में वो क्षमता स्वतः आ जाती है कोई भी समस्याओं को सुलझाने की, कोई भी समस्या जूझने की, जिसको लोग टेंशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, ये डिप्रेशन कहते हैं, ये सारे अपने आप उड़ जाते हैं। जिस तरह से सूरज की रोशनी बर्फ पे पड़ते ही बर्फ पिघल के भाप बन जाते हैं, उसी तरह से जो ही चेतना शक्ति मनुष्य में जागृत होती है, साधना के माध्यम से स्वतः यह मन की कालिमा खत्म हो जाती है, विशुद्ध चेतना और उज्जवल प्रकाश प्रस्फुटित होता है। यही है, इसीलिए कहा जाता है कि जो आध्यात्मिकता है वो क्या है? इट इज अ नेवर एंडिंग endeavor to find a link between finite and infinite. फाइनाइट और इन्फानाइट के बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करने की जो विज्ञान है वही आध्यात्म है। और उसका शुरुआत होता है नैतिकता से। अर्थात नैतिकता द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बेस है, आधार है। उस आधार के बिना आध्यात्मिकता को कभी प्रैक्टिस नहीं कराया जा सकता है। किंतु समाज में ये जो भौतिकवादी जो विचारधाराएं हैं, ये भौतिकवादी जो विचारधाराएं हैं, ये मनुष्य को एनालिटिकल वे में खींच के ले जाता है। एनालिटिकल वे मतलब एक से अनेक की ओर बढ़ा देता है। किंतु आध्यात्म का मार्ग जो है वो अनेक से एक की ओर जाना। आध्यात्म का मार्ग सिंथेसिस का मार्ग है। और मजहब जो रिलीजियन कहते हैं, ये वो अब एनालिसिस है। वो बहिर्मुखी करके मनुष्य को गुटों में, टुकड़ों में बांट देता है। आध्यात्म सिर्फ मनुष्य प्रेम नहीं सिखाता है। अध्यात्म तो जीवों के जीव, अणु, परमाणु, लता, गुल्म सबसे प्रेम सिखाता है। किंतु रिलीजियन मनुष्य में, पशुओं में भेद सिखाता है और संपूर्ण दुनिया को एक भोग का वस्तु के रूप में, उपादान के रूप में उपयोग का एक वस्तु दिखाता है। इसलिए आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल, रिलीजन अलग चीज है। आध्यात्म
सिंथेसिस का पथ है और इसी से मनुष्य का कैरियर बनता है। आध्यात्मिक मानसिक शक्ति जागृत होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होता है। जैसे कि आचार्य धर्म प्रमाण जी ने अभी कहे कि मन के सारे चैम्बर्स खुल जाते हैं, जो ज्ञान का अनंत समुद्र भंडार है वो खुल जाता है। उसके बाद इंसान को कोई चीज की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दीदी विनीता आनंद जी हैं तो वो अपनी बात रखें, फिर उसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। धन्यवाद दादा। लेकिन अभी मुझे श्रोता बनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज नाउ आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ब्रदर्स, लर्नेड ब्रदर्स लाइक यू। तो मेरे बोलने के लिए ऐसा कुछ खास रह नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे सहमति जताते हुए मैं ललित परिमू दादा की इस बात को मतलब बिल्कुल ये सही है कि बच्चों को चाइल्डहुड से ही आध्यात्मिक साधना की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके, उनका मन शुरू से ही स्ट्रांग हो सके, जिससे समस्याओं को के समाधान करने की ट्रेनिंग भी उन्हें मिले और वो आसानी से अपने गोल को अचीव कर सके। और दूसरा, उनका जो मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, आध्यात्मिक परम आनंद की प्राप्ति, उस बृहत में प्रतिष्ठित होना, इसके लिए भी उनको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है इस जीवन में। जब वो बचपन से ही इस तरफ बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, तो धीरे धीरे इस लाइफ में ही वो काफी आगे निकल सकते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। और आध्यात्मिक संपदा है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सही है कि हम लोगों को ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए जिससे कि स्कूल लाइफ से ही बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा या बड़ा होकर, मेरा कहने का मतलब है कि जब आध्यात्मिक होते हैं, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, कहीं ना कहीं उनका समय पर भी नियंत्रण होता जाता है और उनकी स्मृति बहुत अच्छी होती है, जिससे वो आगे की स्टडी, पढ़ाई लिखाई करने में बहुत आसानी होती है, चित्त की एकाग्रता होती है, जो इस सब में बहुत सहायक होता है। और वो ऐसे प्रोफेशन का चुनाव भी करते हैं जिससे उन्हें संतुष्टि मिले और समाज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद आप सब लोगों को। अगले हम सवाल की तरफ जा रहे हैं कि ये हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। हम लोगों के जीवन में झगड़े होते हैं, लोग हैं, आपस में मतभेद होते हैं, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, दादा दीदी, मार्गी, ये वो जिसमें आप जहां भी समाज में, अरे कहीं नहीं तो अपने दिमाग में ही झगड़े चलते रहते हैं दुनिया भर के विषय के। तो ये झगड़ा हमारा एक लगता है कि एक जीवन का अंग है। तो ये आध्यात्मिकता से हम लोग आगे के विषय को थोड़ा संक्षेप में टच करेंगे कि कैसे ये आध्यात्मिकता हमारे इस प्रकार के जो झगड़े का माहौल होता है, चाहे आंतरिक झगड़ा हो चाहे वो बाहरी झगड़ा हो, ये दोनों झगड़ों में आध्यात्मिकता कैसे उस चीजों को मिनिमाइज करेगा ताकि हम अपने जीवन की जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उसको हम ज्यादा बेहतर अच्छे से काम में लगा सके। अब कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी करता है, अगर वो झगड़े में ही लगा रहेगा तो उसकी नौकरी भी खराब होती है, उसकी पढ़ाई भी खराब होती है, और बाकी और भी कोई लोग है, प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, सबको दिक्कत होती है। तो हम अपने जीवन को इस प्रकार से कैसे बनाएं कि ये झगड़े मिनिमाइज हों, और अगर हो भी तो हमारे मन को प्रभावित ना करें। इस विषय पे मैं कहूंगा कि स्टार्ट करें दादा पुण्यदेवानंद जी, और आप अपनी बात को थोड़ा शॉर्ट में ही रखें ताकि हम लोग बाकी के सवाल को भी जल्दी जल्दी कंक्लूड कर सकें। ओके, हाँ, ऐसे समय भी हम लोग का खत्म होने जा रहा है। खैर जो भी हो, तो आध्यात्मिकता के माध्यम से किस तरह से व्यक्ति का जो संबंध है, समाज के साथ व्यक्ति का संबंध है, कैसे स्ट्रांग हो सकता है, ये बहुत ही अच्छा विषय है। हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हो या समाज हो या देश हो, सब के पीछे एक गाइडिंग फैक्टर होता है, एक फिलोसॉफिकल बेस रहता है, और उस फिलोसॉफी के माध्यम से ही उसको आधार बनाकर ही इंसान सोचता है। और ये जो सोच है, इसका दो अप्रोच है। दो अप्रोच के माध्यम से इंसान इस दुनिया को देखता है। दो तरह के नजरिया हैं।
जिसको आउटलुक कहते हैं। दादा आपका आवाज कट गया। हेलो। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है जी। कंटिन्यू करिए। जी, तो ये कह रहा था हाँ जी कि जो नजरिया है वो दो तरह के हैं। एक है मैटेरियल पर्सपेक्टिव, एक है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। मैटेरियल पर्सपेक्टिव क्या है? मैं थोड़ी देर पहले कहा, मैटेरियल पर्सपेक्टिव मनुष्य को अंतर्मुखी नहीं होकर मनुष्य को बहिर्मुखी बना देता है। मन के गहराई में नहीं जाकर वो बाहरी जगत में सारे सुख सुविधाएं खोजना शुरू कर देता है। आपकी आवाज कट जा रही है। क्योंकि ये नेटवर्क अभी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सर जो भी हो, हम शॉर्ट में ही बोलने का कोशिश करेंगे। मेरा कहना ये है कि जब मैटेरियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मैटेरियल नजरिया से अगर हम दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया में हमें सिर्फ और सिर्फ समस्याएं ही देखती हैं। क्योंकि मैटेरियल पर्सपेक्टिव में से मनुष्य में भोगवाद को जन्म देता है। मैटेरियल पर्सपेक्टिव मनुष्य में स्वार्थ को जन्म देता है। मैटेरियल पर्सपेक्टिव मनुष्य में बहुत तरह के नैरो सेंटिमेंट्स को जन्म देता है, जो सेंटिमेंट इंसान के रिश्तों को कलुषित करता है। सेंटिमेंट, स्वार्थ, ये मनुष्य के रिलेशंस को कलुषित करता है। ये एक ऐसा विजन है, एक ऐसा नजरिया है, जो नजरिया एक मनुष्य के लिए संपूर्ण दुनिया को भोग के वस्तु के रूप में, भोग के उपादान के रूप में आवाज आपका कट रहा है, बार बार कट जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जो मैटेरियल पर्सपेक्टिव इंसान को संकीर्णताओं और अलग अलग सेंटिमेंट से जोड़ देता है, और सेंटिमेंट मनुष्य को सिर्फ तोड़ता है, मनुष्य को जोड़ नहीं पाता है। इसीलिए अगर समाज में अच्छा संबंध, व्यक्ति व्यक्ति का संबंध, व्यक्ति समाज का संबंध अगर स्ट्रांग करना है, तो इस मैटेरियल पर्सपेक्टिव को बदलना होगा, उसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में ले जाना होगा। और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है? दादा आपका नेटवर्क कट जा रहा है, आप ऐसा करिए बाद में कंटिन्यू कर लीजिएगा फिर। प्लीज आप जरा सा अब मेरा नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। राइट राइट राइट। अगर आप शॉर्ट में कुछ कह के कंक्लूड कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये अभी बस हाँ, अभी कंक्लूड ही कर देते हैं सब्जेक्ट को हम। तो मेरा कहना यही था कि आध्यात्मिकता एक आदर्श है। आपका दादा फोन सही में डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए ठीक है दादा, आप कंटिन्यू करिएगा बाद में। आध्यात्मिकता एक ऐसा आदर्श है जो आदर्श सभी संकीर्णताओं को खत्म कर देता है। एक छोटा उदाहरण ये है, कहा जाता है कि कोई छोटा एक बिंदु है, एक छोटा सा घेरा है, उस घेरा को अपने दायरे में लेने के लिए एक बहुत बड़ा लाइन खींचना होता है। अर्थात एक छोटा सर्कल को बड़ा सर्कल से घेरने से हो जाता है।
अर्थात मैटेरियलिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है, आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव में अगर चेंज करते हैं, आध्यात्मिक आउटलुक देते हैं, तो ये सारे संकीर्णताएं खत्म हो जाती है। मनुष्य में आध्यात्मिक चेतना जगती है, जो चेतना मनुष्य ही नहीं, दुनिया के लता गुल पशु पक्षी सबसे प्रेम करने के लिए उत्साहित करता है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति को एक भूमा आदर्श, एक आध्यात्मिक आदर्श की जरूरत है, जिसको हम कह सकते हैं नव्य मानवतावादी आदर्श। वही मनुष्य को सारे संकीर्णताओं को खत्म करके विशुद्ध चेतना में प्रतिष्ठित करके मनुष्य में, सभी जीव जंतु में, पशु पक्षियों में एक सुंदर संबंध स्थापित करने में मददगार हो सकता है। धन्यवाद। मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा दीदी विनीता आनंद जी से कि वो फिर इस पे अपना कुछ व्यूज रखें। थैंक यू दादा। दादा पूर्णदेवानंद दादा ने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू दादा पूर्णदेवानंद दादा। व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व जिसको कहा जाता है, उसके दो पक्ष होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य पक्ष जो होता है वो कैसे ड्रेस्ड अप होता है, कैसे चलता फिरता है, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, और जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन हैं, उनसे हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हर एक रिलेशन टू रिलेशन हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, वैरी करती है। जब हम पिता से इंटरेक्ट करते हैं तो उस वक्त मेरी एज ए डॉटर हमारी पर्सनालिटी होती है। जब हम भाई से इंटरेक्ट करते हैं तो एज ए सिस्टर हमारी पर्सनालिटी जो थोड़ी चेंज होती है। जब हम बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं तो एक एज ए मदर हमारी पर्सनालिटी वहाँ होती है। और जब अपने हस्बैंड से हम या वाइफ से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी वहाँ अलग होती है। तो ये हमारे व्यक्तित्व का बाह्य पक्ष है। और हमारा जो व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष है वो है हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर। जब मन इंद्रियों के प्रभाव में रहता है, इंद्रियां चूंकि प्रकृति के प्रभाव में रहती हैं, तो मन में बहुत सारी संकीर्णताएं आती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अविश्वास, इन सब चीजों से मन घिरा रहता है और इससे वो उसके संबंधों पर भी प्रभाव डालती है। लेकिन जब मन आत्मा साधना के द्वारा अपनी आत्मा के निकट पहुंचती है तो उस वक्त वो उसके जो ये सारी जो त्रुटियां हैं, ये जो खराबियां हैं, ये जो गलतियां हैं, ये खत्म होती जाती हैं, ये जो विचार है ये तिरोहित होता जाता है। तो उस वक्त जो सद्गुण है, नैतिकता, मॉरलिटी, निष्ठा, सेवा, परोपकार, ये सारे जो सद्गुण हैं वो हमारे चरित्र को अपग्रेड कर देते हैं, ऊंचा बना देते हैं। और जब इस तरह के कैरेक्टर का जब व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष पर प्रभाव पड़ता है तो हमारे संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और संबंधों के जो रिश्तों के जो निर्वहन होता है उसमें शुद्धता और शुचिता आती है, जो हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को मजबूती और मधुरता प्रदान करती है। तो इसलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है कि किसी भी रिश्तों को अच्छा और मधुर बनाने के लिए आध्यात्मिकता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और संबंध अस्थायी रहे, संबंध दीर्घकाल तक रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है मनुष्य का आध्यात्मिक होना। थैंक यू वेरी मच। हाँ दीदी, आपको भी धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ दादा नित्य सुंदरान जी से कि वो भी अपनी बात रखें, और शायद हम लोग ये वाले सवाल के खत्म होने के बाद अगले सवाल के लिए हो सकता है हम लोग अगली फिर दोबारा चर्चा फिर से आयोजित करें, समय को ख्याल रखते हुए। लेकिन ये जो सवाल है इस पे हम लोग एक निष्कर्ष निकाल लें पहले। तो दादा नित्य सुंदरान जी। नमस्कार। तो संसार में विभिन्न प्रकार के रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, और उससे भी ऊपर उठे तो देश, अंतरराष्ट्रीय, हर प्रकार के हैं। तो हर लोगों के लिए कुछ न कुछ विशेष चीज की जिम्मेदारी है। जैसे अगर पारिवारिक रिश्ता अगर खटाई पड़ता है, अगर टूटता है, तो उसके लिए क्षुद्र स्वार्थ
और सहनशीलता का अभाव। दूसरा है कि भौतिकता के तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण होना, मेंटलिस्टिक होना। जिस तरह की सिस्टर विनीता जी ने कही कि ये जो सीरत है और सूरत है, तो कुछ लोग जो आंतरिक गुण को, सीरत को न देख करके वो सूरत पर मरने वाले होते हैं। तो कई तरह की ये चीज होते हैं, लेकिन खास करके समाज में जो विघटन पैदा लेते हैं, जो समाज में जो डिफरेंसेस पैदा लेते हैं, जो रिश्ते बिगड़ते हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है वो रिलीजन है। और रिलीजन में बहुत सारा जो रिलीजियस बुक्स हैं वो इतने त्रुटिपूर्ण है कि वो एक दूसरे को दुश्मन की तरह टीच करते हैं। उसका लिखित भी वैसा है, उसका टीचिंग भी वैसा है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि वो बोलते कुछ और है, लेकिन उनका व्यवहार में कुछ, कर्म में कुछ और होता है। तो इस तरह का तमाम चीजें होती है। समाज में जो एक दूसरे से संबंध बिगड़ता है, उसके लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद में विस्तार से लिखे हैं कि ये जो जियो सेंटिमेंट है, सोशियो सेंटिमेंट है, ह्यूमनो सेंटिमेंट है, ये तमाम प्रकार के जो क्षुद्र भाव जड़ता है, भाव प्रवणता है, ये तमाम चीजें जिम्मेदार है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे अज्ञानता या जो इम्पोज्ड रॉन्ग टीचिंग जिसको बोल सकते हैं, वो सारे चीज इसमें रूढ़िवादिता, ये तमाम चीजें पहलू आ जाते हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि अगर कोई भी बुक जो कि इंसानियत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करती है, उसको तो पूरे विश्व के तरफ से ऐसे बैन कर देना चाहिए। और जो इस तरह के संस्था है जो कि इंसानियत के विरुद्ध टीचिंग करती है, तो पहले तो उस संस्थान को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंसानियत का विघटन वहीं से आते हैं। अब रहा कि इसका समाधान क्या है, तो इसको पहले तो आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजन में इसका कहीं भी समाधान है। क्योंकि रिलीजन वो किसी न किसी फेथ पर, एक विचारधारा पर, एक मतवाद पर आधारित है, लेकिन जो आध्यात्मिकता है वो रियलाइजेशन पर आधारित होता है। और साइंस भी कहती है जो रियलाइजेशन होता है वो किसी का भी हो, वो समान हो जाते हैं। इसलिए जब हर व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता एक है और हम सभी उसी सृष्टिकर्ता के, संसार के सब हम लोग उसी के संतान हैं, तो आपस में हम लोग भाई बहन हैं। इसीलिए यहाँ जियो और जीने दो की ये करना चाहिए। दूसरी चीज है कि हमें इस तरह का सामाजिक व्यवस्था करना चाहिए। और जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ये जो एजुकेशन, ये बैकबोन होता है समाज का। ये जो व्यक्ति को व्यक्तित्व में, मतलब व्यक्ति को, इंसान को एक इंसान बनाता है, इसका मुख्य है टीचिंग। तो हमारे जो पूर्व में जो शिक्षा का व्यवस्था हुआ करते थे, गुरुकुल, वहां पर हर प्रकार के उनको शिक्षा दीक्षा होते जाती, प्रैक्टिकली होती थी, उसमें भाईचारे बढ़ते थे। वहां ये मॉडर्न के नाम पर हम लोग एक दूसरे को अलग करते जा रहे हैं। कहीं कहीं टीचिंग में ये इसको पूरा सब्जेक्ट को हम लोगों को बदल करके इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि विद्या का मतलब, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है केवल ब्रेड एंड बटर कमाना। एजुकेशन का मतलब होता है सा विद्या जा विमुक्ते, नोइंग वन सेल्फ इज देन रियल नॉलेज। इसलिए अपने को पहचानना, अपना कर्म और कर्तव्य को जानना, उसके साथ हमको नैतिकता में प्रतिष्ठित होकर के आध्यात्मिकता पर चलते हुए हमें ये मानना है कि सब लोग परमात्मा का ही एक रूप है, उसी का सृष्ट जगत है। इसलिए हमें हर जड़ चेतन में, कण कण में हमें परमात्मा को देखना है और उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, किसी भी प्रकार का उच्च नीच नहीं रखना है। सभी को समान रूप से हम उसको रेस्पेक्ट करें, समान अधिकार देने की कोशिश करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरह समाज में समानता आएगी तो अपने आप सबका संबंध बहुत अच्छे हो गए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं 2-1 मिनट का बोलूंगा, उसके बाद अंत में मैं ललित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ों का निष्कर्ष डालेंगे वो, और उसके बाद हम लोग आज की इस पैनल को हम लोग खत्म करेंगे। तो रिलेशनशिप की जो बात हो रही है और स्पिरिचुअलिटी, हाउ स्पिरिचुअलिटी इम्पैक्ट्स आवर रिलेशनशिप एंड हाउ इट मेक्स इट बेटर, वी हैव टू अंडरस्टैंड from its core, and I totally subscribe to the ideas spoke by Vinita Didi and Dadas, and earlier spoken on this subject also by Lalit ji. Baba has, our spiritual master Sri Anandamurti has quoted something from Gita several times, and that is yoga karmashu kausala. योग जो है वो कर्म करने का एक तरीका है, और कर्म हम कैसे करते हैं? मनोवाक काय, फ्रॉम द माइंड वी परफॉर्म एक्शन, वी परफॉर्म एक्शन बाय वर्ड्स एंड आल्सो बाय द बॉडी। तो हम जहां भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। तो मन में भी अगर हम कुछ करते हैं तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप अगर कीर्तन करते हैं तो कीर्तन क्या है? कम्युनिकेशन है, भगवान से बात करने का एक तरीका है। आप अगर किताब के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है, द वे यू आर टॉकिंग टू योर बुक। आप आपस में लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है। आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, केवल मुद्राएं दिखा रहे हैं, जब बाई जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, इवन दैट ऑल्सो इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इतना रोल प्ले करता है हमारे रिलेशनशिप में कि आदमी अगर इस कम्युनिकेशन की कलाएं सीख ले, आर्ट ऑफ परसुएशन, आर्ट ऑफ लिसनिंग, मतलब दुनिया में 90% ये जो रिलेशंस के प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व केवल इसी बात से हो जाता है कि हम लोगों की बातों को सुने, खाली सुन लें और उसको अटेंटिवली सुने। द आर्ट ऑफ लिसनिंग प्लेज ए ग्रेट रोल अलॉन्ग विथ आर्ट ऑफ स्पीकिंग ऑल्सो। ये सब चीजें हैं, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं लोगों के जीवन में। मैं एक सवाल पूछता हूं अपने बात को खत्म करने से पहले कि how many of the listeners right now do something called Facebook meditation? How many of the listeners do something called YouTube meditation, TikTok meditation? And I'm sure the answer will be many. And what is a Facebook? You know, आज मैं इसका एक दूसरा एंगल भी देता हूं कि what is a Facebook? Facebook means it's a book of your face. आपके चेहरे का किताब है जो आपके चेहरे की सच्चाई बताता है। It's a book that shows your real face. How many likes, how many dislikes, how many friends, how many not friends. So all these kind of things shows in the external Facebook. But if we look at our internal Facebook, then we all have a very powerful friend. And that friend is the controller of the whole universe. That friend is always there. But that friend is not available through the computer Facebook. That friend is available through our psycho-spiritual mental Facebook. So anybody who uses this social media, if they know how to connect with their own internal media, so that entity, that permanent friend, that powerful friend who is present in our internal Facebook is always there with us. That internal friend always loves us. He's there for us for all the time. So through spiritual practice, through spiritual meditation, we have to learn how to chat with that friend internally. And if we can learn how to do that, imagine the amount of power, imagine how the amount of potentiality that you can generate by connecting with that internal friend of yours. So in the relationships, you know, when we have, if somehow we can understand and realize that this particular friend inside the supreme entity is there, then all the relationships that we see all around, you know, that friend can make it very sweet. So basically, the internal Facebook becomes a kind of key for us to lead a life which can bring a harmony inside and also harmony outside. So with that, you know, I just wanted to put my views on this one, and I would like request Lalit ji to make a conclusion on this one, and probably in the future we will have such discussions again. Some of the things we could not finish today, but we'll finish in the next discussion. So Lalit ji, please. Yes, you have said very nicely. Most of the points have been
discussed, but this is a huge chapter. As it is said, brevity is the soul of wit. So I'll be very brief. Just 2-3 points I would like to add. Firstly, that conflicts and clashes are inevitable part of everyone's existence and nobody can avoid it. Now, reason is this, that because the whole existence is like that. People who study spiritual philosophy, they know that at a very lower level, which is the level of this physical world, clash will always be there. At the world of psychic level, clash will always be there. So where there is no clash, that zone or that area is the spiritual zone. So when we interact with the world, we have a family, we have a neighborhood, we have a society, we have an office, which means a company or a government office, and we have a business world, and we have a friends world. Everywhere we shall go through the duality of emotions, which is like and dislike, joy and sorrow, love and hate. It is bound to happen. This cannot be avoided. The Dvandatmak part of our existence can never be avoided. That's why the spiritual teaching is this, that we have to move to the non-dual world. We have to move beyond the pairs of opposites. Firstly, in order to resolve our conflicts, as an individual practitioner, one has to struggle within oneself and first play one's role properly. In every relationship, everyone has a role. If in a family one is a father or a son or a husband or a wife, one should try to play one's role as much nicely as one can do, given the limits of one's power and capacities. Similarly, in office world, in friends world, in every organizational world, one has to play one's role properly. And the individual journey of spirituality should be given topmost priority, because there cannot be any conflict, because the movement of one's spiritual journey has to be taken as the most priority in every other aspect of life. So world has to be just managed. Conflicts will be there. One should try to resolve conflicts and worry about one's own internal world. Worry about one's own spiritual journey. There one should see where the defects are. There one should see where are the areas where one lacks. There are the areas where one has certain propensities which need to be controlled, which need to be guided, and there one has to be honest. So honesty is required there, and with honest intentions, one can keep on improving oneself and at the same time solve the conflicts which exist in the external world. The internal world is a very individual journey. So dharma or spirituality always teaches you that ultimately it is a relationship between you and the Supreme. Just now, which Dharma Premanand explained it in the way, the most important friend, the most important face, the most real face, that is the real you. The Guru becomes real you. So one has to worry more about that part. And the other parts one just has to manage. It is said that संसार सिर्फ काम चलाऊ है, वो सिर्फ काम चलाना है. संसार की तमाम अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं. जो मायने रखती है वो अंतर यात्रा है, वो अंदर के रिश्ते की बात है, और वो आप और आपके गुरु हैं, आप और आपके इष्ट हैं. वहां कोई बेईमानी है या नहीं, वहां कोई संघर्ष है या नहीं, उसको देखना पड़ता है. बाहर संसार की जितने भी रिश्ते नाते हैं उनको बस ठीक ठाक तरीके से जी लो और अंतर यात्रा में आगे बढ़ते चलो. इसी प्रकार से हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. इस बात के साथ मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूँ. और अब जो हमारे होस्ट हैं, जो संचालक हैं, उन्हें माइक तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो कंप्यूटर वाला माइक है ये पकड़ा देता हूँ. सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद. ललित दादा, आप अच्छे पॉइंट्स भी रखे हैं और काफी वैल्यूएबल रहा आपका इनपुट. दादा निसुंदरान जी रहे, उनका भी वैल्यूएबल काफी इनपुट्स अच्छा रहा. पुण्यदेवानंद जी रहे, फिर दीदी विनीता आनंद जी, काफी कंसाइज और अच्छे से उनका भी व्यूज रहा है. और अंत में हम तो यही कहेंगे कि भाई हम लोग इन आवर लाइफ कम से कम इतना तो हम शुरू कर सकते हैं अभी से कि बाहर जो फेसबुक और चैट वैट करते हैं, थोड़ा चैट अंदर भी कर लें. अंदर वाले फेसबुक से भी कनेक्ट कर लें, तो क्या है, बाहर वाला भी फेसबुक है, अंदर वाला भी है, तो डबल फेसबुक हो जाएगा. तो ये चीजें सोचने का तरीका है जीवन को आगे बढ़ाने का.
और आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है, इट्स एन आर्ट टू एनहेंस एवरीथिंग व्हाट वी डू। हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा जॉब करें, अच्छी मैनेजमेंट करें, अच्छे फैमिली पर्सन रहें, ये आध्यात्मिकता के प्रिंसिपल्स को लेकर के उसको और बढ़ाएं, अपने जीवन में उसका उपयोग करें। जब भगवान ने, जब ईश्वर ने हमारे को ये सब चीजें, गुण विद्याएं दे रखी हैं, तो उसका उपयोग हम क्यों न करें? हमारे दिमाग में इतनी पोटेंशियलिटी है, तो उसको क्यों छोड़ देंगे भाई? हम 95% यूज करते ही नहीं है, तो उसको यूज करें। तो ये मेडिटेशन और स्पिरिचुअल आइडिएशन है, मेथोडिकल थिंकिंग है, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन है, ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। सीखेंगे और इसको करेंगे भी तो ये सब चीजें आपको अपने आप ही पता चलेगा। बहुत सी चीजें हम लोग कहते हैं, आपको शायद पकड़ में ना भी आवे, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों में से जो लोग के मन में किसी प्रकार का सवाल हो या इस विषय पे और जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल रखा हुआ है और एक व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कभी भी संपर्क करें। और आप लोगों से हम लोग सजेशन भी चाहेंगे कि आप लोग बताएं कि आगे हम जब इस प्रकार की पैनल डिस्कशन करें तो इसमें और क्या चीजें कह सकते हैं, क्या बातें हो सकती है, आप क्या सुनना चाहेंगे, इसमें भी आप लोगों की राय हम लोग जानना चाहेंगे आगे के लिए। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद, आप सब लोग आए, अपना समय दिए हैं। सारे श्रोतागण हैं, जितने भी लिसनर्स हैं इस पैनल डिस्कशन के, वो सब लोगों को भी धन्यवाद। जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है उनको भी धन्यवाद। बाकी सब परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की इच्छा है। सब लोगों को नमस्कार। 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 Thank you very much. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि इंडिया की तरफ से। हाँ, और यहाँ का तो गुड डे चल रहा है।